آپ نے ملاحظہ فرمائیں بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں بہاولپور میں آٹا اور چینی کی قلت اور بڑھتی ہوئی قیمتوں سے شہری پریشان ہیں۔ عام مارکیٹ میں کہیں آٹا اور چینی نایاب تو کہیں خود ساختہ قیمتیں شہریوں کے لیے درج سر بن چکی ہیں۔ اسے پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے محمد امین بتائے گا۔ جی بالکل، بہاولپور میں عام مارکیٹ میں جو عام شہری ہے وہ آٹا اور چینی کے بحران اور اس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہے، اور بہاولپور شہر کی مختلف مارکیٹوں میں پہلے تو آٹا اور چینی نایاب ہوتے ہیں، اگر کہیں خوش قسمتی سے دستیاب بھی ہو جائیں دونوں چیزیں تو یہ ان کی قیمتیں جو ہے وہ اتنی مہنگی ہوتی ہیں۔ چینی جو ہے وہ عام مارکیٹ میں کہیں 85 روپے کہیں 90 روپے فروخت ہو رہی ہے، اور آٹے کی بات کریں تو آٹا جو ہے کہیں 20 کلو کا جو تھیلا ہے وہ 860 اور کہیں 900 کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ کوشش کریں گے خریدار موجود ان سے بات کرنے کی، ان سے بات ہو سکے۔ السلام علیکم۔ اچھا بتائیے کہ آٹا اور چینی مل رہے ہیں، اگر مل رہے ہیں تو کتنے کیا قیمتوں میں مل رہے ہیں؟ پہلے تو چینی جو ہے اس کا ریٹ ہی بہت ہے، یہ 90 روپے 85 روپے پہلے کو مل ہی نہیں رہی، کسی دکان پہ چلے جائیں وہاں سے نہیں ملے گی، اگر جہاں سے ملے گی وہاں ریٹ بھی ہائی ہوگا۔ اور آٹا جو ہے وہ بھی 12 سنگا یا دوسرا ہے وہ 1100 کا بھی ہے، 1150 کا بھی ہے، 800 کا تو مل ہی نہیں رہا کہیں۔ ہم تو سب پریشان ہوئے پڑے ہیں ان چیزوں سے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا کیا نہیں۔ یہ گورنمنٹ جا رہی ہے آ رہی ہے، پتہ نہیں گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں، لیکن غریب عوام کے لیے بہت پریشانی ہے یہ۔ بالکل، عام شہری جو غریب انسان ہے اس کے لیے شدید مشکلات کا سامنے۔ آپ بتائیے گا آٹا اور چینی پہلے ملتے نہیں ہیں، اگر ملتے ہیں تو قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ بہت زیادہ پیسے ہیں، بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں۔ سنیے نا، ہم محلے میں رہتے ہیں، رحمان کالونی میں رہتا ہوں میں، سنیے نا اتنی بے انتہا ہر چیز پہ آگ بڑھ چکی ہے، بہت تیز ہے بھائی۔ غریب آدمی نے ویسے مر جائے نا وہ بھی اچھا ہے، سنیے نا ہر چیز بہت تیز ہے، کوئی چیز لینا جاؤ ہر چیز پہ آگ برس رہی ہے۔ عمران خان نے ہمارے کو بیٹا غرق کر رکھا ہے ہمارا، سنیے نا سخت رد عمل کا سامنا آ رہا ہے شہریوں کی جانب سے حکومت پر۔ بہت شکریہ محمد امین، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے رخ کریں گے میاوالی کا۔ میاوالی میں روہی کی خبر پر ایکشن، روہی نے خبر پر افسران حرکت میں آ گئے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور پتلا پر آٹا دستیاب ہو گیا، جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر تاحال چینی دستیاب نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اختر مجاز۔ جی بالکل، روہی نے خبر بریک کی تو انتظامیہ جو ہے یوٹیلیٹی سٹور کی جو انتظامیہ ہے وہ حرکت میں آ گئی۔ روہی نے گزشتہ روز خبر بریک کی تھی کہ یوٹیلیٹی سٹور پپلا پر نہ تو چینی ہے اور نہ ہی آٹا ہے، لیکن جہاں پہ آٹا تو دستیاب ہے، آج شہری آٹا خرید بھی رہے ہیں، لیکن چینی جو ہے تاحال یوٹیلیٹی سٹور پر نہیں پہنچی۔ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ کیا لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ آٹا لینے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ پپلا سے۔ اچھا، پپلا سے آئے ہیں، تو آٹا مل رہا ہے آپ کو؟ جی مل رہا ہے۔ چینی کب سے نہیں مل رہا ہے؟ چینی تقریباً آدھا مہینہ ہو گیا نہیں مل۔ آدھا مہینہ ہو گیا۔ جی جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ 15 روز سے زیادہ دن ہو چکے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے چینی دستیاب نہیں ہے، لیکن جہاں پہ آٹا دستیاب ہے۔ مینیجر صاحب کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ لکھ دیا گیا ہے ہیڈ آفس کو کہ اتنا یوٹیلیٹی سٹور پر چینی تاحال نایاب ہے۔ اختر مجاز آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں عید قربان جیسے جیسے قریب آتی جا رہی ہے ویسے ہی سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اطلاع شاری سے۔ اطر بتائے گا کتنا اضافہ ہوا ہے؟ جی بالکل، ایسے کی بات کریں عید قربان کے آمد سے پہلے ہی کچھ چیزیں ہیں، کچھ سبزیاں خاص طور پر مسالہ جات ان کی جو پرائسز ہیں اس میں ہائیک آیا ہے، اور آلو کی قیمت میں بات کریں تو اس میں بھی ایک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جو نیا آلو آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایشو ہے اہم، جو سرکاری ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری ہوتی ہے وہ دکانداروں کے پاس بہت زیادہ تاخیر سے پہنچتی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید عرفان بخاری صاحب، انسپیکٹر ہیں مارکیٹ کمیٹی بہاولپور کے۔ عرفان بھائی بتائیے گا، دو ایشوز ہیں، ایک تو جو سبزیاں ہیں خاص طور پر مسالہ جات ہیں ان میں ادرک ہو گئی، باقی چیزیں ہو گئیں، آلو ہو گیا، ان کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے اتنا تیزی کے ساتھ، اور مارکیٹ کی جو ریٹ لسٹ ہے وہ کیوں دیر سے پہنچتی ہے؟ سب سے پہلے تو جو چیزوں کے بارے میں کہ یہ مہنگی ہے، ان دنوں لوکل سبزیات تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ ابھی آلو کے بارے میں آپ نے بتایا، آلو ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ گلگت سے آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں جب گلگت سے چلتا ہے تو اسے یہاں تک پہنچتے پہنچتے کتنی ٹرانسپورٹیشن بچتی ہے۔ جب ہمارے لوکل سبزیات یہاں پہ ہوتے ہیں تو ریٹ یہ دیکھیں کہ کوئی خریدار نہیں ہوتا۔ سم ٹائم جو ہے 5 kg کا جو ٹماٹر ہے وہ 10 روپے کا بھی بکنے نہیں ہوتا۔ جو کاشتکار ہے اس کو کرائے میں بھی جو ہے نا وہ پورا نہیں آتا، یہاں پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ اس کی مین چیز مہنگائی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوکل سبزیات ختم ہو گئی ہیں۔ باقی یہ جو بات ہوگی کہ اس کی جو ہے اپنی ریٹ لسٹ لیٹ پہنچتی ہے، ہم نے اس کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے، اس کے ڈسٹریبیوٹر سسٹم جو ہے اس میں اگر کہیں کوئی لیپس آ رہا ہے، ابھی آپ نے ہمارے نوٹس میں دی، ہمیں ایسی بات ایسی کوئی کمپلینٹ نہیں آئی۔ مزید ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو انشور کرتے ہیں کہ ویل ان ٹائم جو ہے ریٹ لسٹ ان کو مہیا کر دی جائے۔
सब्जियों के रेट्स में इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे शौकीन हजरात के लिए खुशखबरी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की टैक्स कटौती में अहम तब्दीली। शहरी अब कैश के बजाय क्रेडिट और डेबिट कार्ड का करेंगे इस्तेमाल। कार्ड के इस्तेमाल पर 16% टैक्स की बजाय 5% टैक्स की कटौती की जाएगी। नोटिफिकेशन में चाय शॉप्स और रेस्टोरेंट शामिल हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं इकबाल सादिक। जी बिल्कुल, एफबीआर को जो इदारा है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, उसकी जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक जितने भी कॉफ़ी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन पर जाकर जो कस्टमर्स हैं वो अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए उन्होंने छूट दे दी है, सहूलत पैदा कर दी है कि वो अब 16% नहीं बल्कि 5% जो है उनके ऊपर टैक्स वगैरह है वो लागू हो सकेगा। जो कैश में पे करते हैं उनके लिए 16%। ये लेटर तो लाहौर से जारी हुआ है, ऊपर लिखा भी लाहौर है, तो इसका जनूबी पंजाब में क्या असर हो सकता है, और ये भी बता दें कि ये बेसिकली सहूलत है क्या आम सार्फिन? ये बेसिकली पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एफपीआर के अंडर ही काम करता है, तो ये सहूलत है उन लोगों के लिए जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तमाम रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स जो बड़ी बड़ी हैं, जो हमारे टैक्स नेट में ऑलरेडी हैं, उनके लिए सहूलत ये है कि अगर कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है तो उन पे टैक्स 16% की बजाय 5% होगा, मगर वो अपनी इनपुट एडजस्टमेंट नहीं ले सकेंगे। लेट से कि अगर वो उस पर बिजली यूज़ होती है, जो भी उनका हो रहा है, तो वो उसको एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। 5% नेट जो है ना वो पे करेंगे, और जो कस्टमर से चार्ज करेंगे वो जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे, और बाकी लोग जो ये फैसिलिटी अवेल नहीं करेंगे उन पे वही 16% रेट ही रहेगा। ये एफबीआर ने इनकरेज किया है उन लोगों को जो क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं। जो अच्छा, इसका एक तो ये बता दें कि थोड़ा सा मकसद भी बता दें कि इसका करने का ये मकसद क्या था, और ये भी बता दें कि जनूबी पंजाब में इसके साथ क्या ये पूरे पंजाब में हो गया या सिर्फ लाहौर के लिए? नहीं, ये पूरे पंजाब के लिए नोटिफिकेशन है। उसमें ये है कि गवर्नमेंट ने पॉइंट ऑफ सेल जो बनाए हुए हैं, जहां गवर्नमेंट का अपना ऑनलाइन सिस्टम पड़ा हुआ है, हर रेस्टोरेंट होटल कॉफ़ी शॉप पे पड़ा हुआ है, तो उसी ऑनलाइन सिस्टम के तहत इनकरेज करने के लिए कि ताकि इसमें कोई टैक्स की चोरी का कोई पहलू सामने ना आए, तो उन्होंने उन लोगों को फैसिलिटेट किया है जहाँ ये ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, उनके लिए फैसिलिटी है कि वो सिर्फ 5% टैक्स देंगे। वो जनूबी पंजाब में ये चीज़ लागू हो रही है? बिल्कुल, ये इसी लेटर के तहत फौरी तौर पर यह नफजुल अमल है, फौरी तौर पर 1 जुलाई से ये। जी बिल्कुल, 1 जुलाई से ये चीज़ नाफिजुल अमल है, और इसका मकसद यह है कि पीओएस के तहत वो सिस्टम। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इकबाल सादिक, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, मुल्तान सूरजकुंड रोड बारिश के पानी में डूब गया। चेयरमैन एमडीए मियां जमील अहमद का पार्टी रहनुमाओं और वासा अमले के साथ सूरजकुंड रोड का दौरा। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे जुनेद अनवर से। जुनेद बताएगा। जी बिल्कुल, 2 रोज हो चुके हैं बारिश को, मगर सूरजकुंड रोड जो है अभी भी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। चेयरमैन एमडीए मियां जमील अहमद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ सूरजकुंड रोड पर पहुंचे और यहाँ का सूरत का जायजा लेने पहुंचे। बात भी करेंगे और मियां साहब, सूरजकुंड रोड जो अभी भी तालाब का मंजर पेश कर रहा है, पार्टी रहनुमा भी तनकीद कर रहे हैं, क्या कहना है? ये मसला बहुत अरसे से था। आज रात मेरी मखदूम शाह साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी मुझे कहा कि ये मसला हल नहीं हो रहा, तो आप जाके विजिट करें और ये देखें, फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको हल करने की कोशिश करें। सजाद अमीर साहब, कैसे देखते हैं कि शहर जो है वो पानी में डूब चुका है? कल से बारिश आई हुई है, 3 से 4 फुट पानी यहाँ था। कल से वासा की टीम भी काम कर रही है, तो हमने मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को भी गुजारिश की थी, मियां जमील साहब को भी गुजारिश की थी। उसके नतीजे में मियां साहब खुद विजिट करने आए हैं यहाँ पर सूरजकुंड रोड का, क्योंकि यहाँ बुनियादी मसला है सीवरेज का। जब तक हमारा सीवरेज का बुनियादी मसला हल नहीं होगा, ये मसला ऐसे ही रहेगा। सजाद साहब, कैसे देखते हैं इस मसाइल को? इंशाअल्लाह ताला अवाम का जो मसला था, हम सब इकट्ठे हुए हैं, चेयरमैन साहब है, सब इंजमन ताजरान भी इकट्ठी हुई है। मकसद ये है कि रोड कंप्लीट होने से पहले जो इसके नुक्से हैं वो पहले दूर दिया जाए। शेख ताहिर साहब, मियां जमील साहब के साथ विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पानी जो है बहुत ज्यादा है, लोग बड़े परेशान। ये इंशाअल्लाह ये अच्छा मसला उजागर किया मलक नियाज भुट्टो साहब ने। ये जरूरी है, पहले वास्ता का मसला हल होगा तो इंशाअल्लाह ये मसला, मियां जमील साहब भी आए हैं, मखदूम साहब को भी रिक्वेस्ट की है, ये इंशाअल्लाह उम्मीद है कि पहले ये वास्ता का मसला हल होगा तो रोड बनेगा इंशाअल्लाह। चेयरमैन एमडीए रोड बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने अपडेट किया। इस हवाले से अब रुख करेंगे बहावलपुर का। बहावलपुर शहर की अहम शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। वहां से अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। तैयब बताएगा। जी बिल्कुल, कल बहावलपुर शहर में सारा दिन बारिश होती रही और कल शाम को ऐसी शदीद बारिश हुई कि जो बहावलपुर की जो तमाम सड़कें थी वो तालाब का मंजर पेश कर रही थी। लेकिन कल शाम से ही कॉरपोरेशन और जो ज़िला इंतज़ामिया का जो अमला था इस तमाम कोशिश में लग गया कि तमाम का तमाम पानी निकाल दिया जाए, और ख़ासतौर पर जो अंडर पासेज पानी में डूब चुके थे और वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी थी उसको काफ़ी हद तक बहाल किया जाए। तो आज सुबह के वक्त
काफ़ी बेहतर सूरत हाल थी, लेकिन शहर में अभी भी जो नशीबी मकामात हैं वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। इस हवाले से सीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, जो बाकी मकामात हैं वहाँ पर पानी कब तक निकाल लिया जाएगा और आखिर आपका जो स्टाफ है वो कब तक काम करता रहेगा? देखिए जी, अल्लाह ताला माफ़ करे, अब तो और नहीं बारिश ना आई तो इंशाल्लाह 2 घंटे में सारा पानी चला जाएगा, क्योंकि जो नशेबी जगह है वहाँ हमारी मशीनरी चल रही है, तो वो मशीनरी पानी सक करके लाइनों में डाल रही है, क्योंकि आगे पानी की कैपेसिटी डिस्पोजल के मुताबिक होती है, क्योंकि वहाँ डिस्पोजल जो है भरे पड़े हैं, तो उसमें बस वो 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे के बाद इंशाल्लाह हो जाएगा। आपको पता है कि बारिश बेतहाशा हुई है और 3.5 घंटे मुतवातल बारिश हुई है, जबकि हमने मेन रोड जो आपका सर्कुलर रोड जो पानी 2-2 दिन पानी बड़ी मुश्किल से क्लियर होता था, वो एक रात में ही क्लियर हो गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपके सामने ट्रैफिक रवादावा है और कहीं ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जहां पानी की वजह से ट्रैफिक रुकी हो। कारपोरेशन अमले ने शहर की बेशतर सड़कों से पानी को निकाल लिया है। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां थाना सिविल लाइन के सामने बारिश का पानी जमा हो गया है, राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं आशिर अशफाक। जी बिल्कुल, डीजी खान में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाइस शहर की मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो चुका है और बारिश का पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका। इस टाइम हम थाना सिविल लाइन के बाहर मौजूद हैं। मेन ये रेलवे रोड है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखा सके। यहाँ पर जो शहरी आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उन तमाम के तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये बारिश का पानी रात से ही यहाँ पर मौजूद है, जबकि इसको अब तक निकालने के लिए हमें यहाँ पर कोई इंतजामात दिखाई नहीं दिए। जो भी शहरी इस सड़क से गुजरे हैं, उनके कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं, उनको परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद जो शहरी हैं वो यही मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर जो बारिश का पानी शहर की मुख्तलिफ मकामात पर, मेन शराहों पर जमा है, उसको निकाला जाए और वहाँ पर उसको क्लियर कराया जाए, ताकि जो शहरी यहाँ से गुजरते हैं, जो राहगीर यहाँ से गुजरते हैं, उनको मुश्किलात का सामना न करना पड़े। राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आशिर अशफाक, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला में बारिश का पानी जमा होने से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल तालाब का मंजर पेश करने लगा है। वहाँ से अपडेट करेंगे राना शौकत। राना बताएगा। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज बारिश के आई कि म्यूनसिपल इंतजामिया के सब अच्छे की रिपोर्ट का पोल खुल गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि बारिश का पानी जो है वो इमारतों में दाखिल हो गया है। इस वक्त मैं जलालपुर पीरवाला के गर्ल्स गवर्नमेंट हाई स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे जितने भी कमरे हैं वहाँ पे भी पानी दाखिल हो चुका है और जो स्कूल है इसका जो सहन है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है और जो स्कूल में फर्नीचर पड़ा था, जितना भी सामान पड़ा था वो ज़ेरे आब आ चुका है और नुकसान हो रहा है। जबकि इंतजामिया के हवाले से अगर हम बात करें तो आज दूसरा रोज़ है इंतजामिया की नाअहली। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दूसरा रोज़ है, लेकिन ताहाल पानी नहीं निकाला जा सका। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल जलालपुर पीरवाला के ये जो है वो आप देख सकते हैं। मैं अगर कैमरा मैन दिखा सके तो ये आपको कमरे भी दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे जो सहन है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है और कमरों में भी पानी मौजूद है और पानी की गहराई 3 से 4 फीट है और ये जो पानी है इमारत की गर्ल्स हाई स्कूल में पानी जमा है। जलालपुर पीरवाला से राना शौकत आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे भक्कर का, जहां नवाई इलाके गडोला से 2 रोज कबल होने वाली बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं उसामा हैदर। बिल्कुल, मैं इस वक्त भक्कर के नवाई इलाका गडोला रोड पे मौजूद हूँ और आप मेरे को में देख सकते हैं कि 2 रोज कबल होने वाली बारिश का पानी अभी भी जो है यहाँ पर मौजूद है और किसी जोहड़ की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुका है। यहाँ के जो दुकानदार हैं इनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि पहले तो लॉकडाउन की वजह से कारोबार नहीं थे और ऊपर से जो बारिश हुई है और उसका पानी यहाँ से जो है वो यहाँ से नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से हमें जो है मजीद मुश्किलात का सामना है। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा किन मुश्किलात का सामना क्या कहेंगे? जी मैं ये कहूँगा जी, वहाँ के 3 दिन से यहाँ से बारिश हुई है तो पानी देख सकते हैं तुम बिल्कुल खड़ा है यहाँ पे और यहाँ पे कोई गाहक भी नहीं रुकता है और बहुत परेशानी है हमें यहाँ पे। बिल्कुल जो है ना टेंशन होती है बहुत ज़्यादा और दरख्वास्त भी हमने दी है, लेकिन उसके बावजूद भी है ना कोई रद्द अमल नहीं हुआ। तो हमारी गुजारिश है कि जो है ना इस पर जो है ना अमल किया जाए।
बहुत परेशानी है हमें। हमें परेशानी का सामना है, इससे पहले भी जो है दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन जो टीएम में हुकाम है वो इस तरफ जो है वो पानी निकालने के लिए नहीं है। लोगों को परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया उसामा हैदर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। मूली वॉशिंग पाउडर ने पहली कुरानदाजी की शानदार तकरीब का इनेकाद किया। बम्पर प्राइज उम्रा, मोटरसाइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर मशीन, इस्त्रियां, सैंडविच मेकर और बहुत से इनामात तकसीम किए गए, जबकि दूसरी कुरानदाजी का इनेकाद 25 सितंबर को होगा। कि शाहकोट में जब आते हैं वो इसको जिस नाम से पुकारा जाता है उसको कहते हैं मूली का शाहकोट। हमारे रिटेलर हजरात या दुकानदार हजरात हैं, उनके लिए कोई ना कोई स्कीम कभी ना कभी आती रहती है, लेकिन हमारे कंज्यूमर तक कभी कोई स्कीम नहीं पहुंची थी। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये स्कीम जारी की थी। इसकी आपकी तरफ से भरपूर पजीर आई हुई है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जो चीज़ें मैंने इनमें महसूस की हैं, जो क्वालिटी के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया इन्होंने। इसी वजह से आज इस्लाम सोप इंडस्ट्रीज़ मूली सोप और मूली वॉशिंग पाउडर हर घर में पहुंच चुका है। माशाल्लाह जी, हमारे न्यूमर जो वो बहुत खुश हैं और माशाल्लाह कुरानदाजी से बहुत ज़्यादा उन फर्क पड़ा है। ठीक है, ये अच्छा साइन है। हाँ जी बिल्कुल, इसी तरह मजीद होना इंशाल्लाह जी। हुकूमती पाबंदी कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी ने मोजा सामुराना में बकर मंडी फौरी तौर पर मनसूख करके इंतजामिया को आगाह कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला मुल्तान की सबसे बड़ी बकर मंडी में, जो मौजा सामुराना में इस वक्त लगी हुई है। CMMC कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी का ये बकर मंडी पॉइंट था, जिसको हुकूमत पंजाब की तरफ से इन हिदायत पर कि शहरी हदूद में जो बकर मंडी है उनको बंद कर देना है और शहरी हदूद से बाहर इनको मुंतकिल करना है, उस नुक्ते के तहत इस मंडी को गैर कानूनी करार देकर अब बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ हजारों बकरों मवेशियों का जो कारोबार का जो सिलसिला है वो अरूज पर है। हजारों की तादाद में यहाँ खरीदार मौजूद हैं। जो ट्रैफिक का इशू भी जो है वो दरपेश है, ट्रैफिक कवानीन से भी मुतालिक आगे दी जाए, इस वाले से हमारे साथ मौजूद हैं वार्डन शाहिद जी। शाहिद साहब, क्या इस दफा लाए अमल है? यहाँ रश शदीद है, ट्रैफिक ब्लॉक नजर आ रही है, आप भी यहाँ मौजूद हैं, सूरत हाल कैसे कंट्रोल होगी? मरकजी शाहराह भी गुजर रही है, उस पर भी ट्रैफिक बार बार यहाँ रुक रही है, तो किस तरीके से देख रहे हैं सारा, और ट्रैफिक प्लान क्या होगा मौजा जसवंत सिंह की मंडी के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। बात यह है कि जब ये मंडी लगती है तो आपको पता है बहुत ज़्यादा रश पैदा होता है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है। जहाँ लिंक रोड से ब्लॉक होते हैं वहाँ मेन रोड का भी इशू बनता है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने प्लान बनाया है, यही प्लान ये है कि हर मंडी जहाँ भी लग रही है, जो लीगल मंडी है वहाँ भी, और जहाँ खुदा ना खास्ता लोग वैसे गैदर कर जाते हैं तो आपको पता है जहाँ गैदरिंग होती है वहाँ इशू क्रिएट हो सकता है। तो सिटी ट्रैफिक पुलिस के अफसरान की ड्यूटी लगाई गई है, हर मौके पे हर मंडी के बाहर हमारा मेन रोड को मैनेज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है वो आगाही देने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन जो अवामी ताउन है वो हासिल नहीं है। अवाम जो है वो कोरोना के हवाले से सामुराना बकर मंडी को मनसूख कर दिया गया है। रजा मलिक, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपका रुख करेंगे राजनपुर का, जहां शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। तफसीलात बता रहे हैं खुरम शहजाद भुट्टा। जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आ रही है, मंडियों की मवेशी मंडियों की रौनकें जो हैं वो भी बहाल होते हुए दिखाई दे रही हैं और शहरियों की बड़ी तादाद जो है अब जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर चुकी है। मैं इस वक्त राजनपुर की मवेशी मंडी कोटला नसीर के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर न सिर्फ राजनपुर बल्कि दूर दराज अपर पंजाब, लाहौर और इस्लामाबाद से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक खरीदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। जानना चाहूँगा आपसे कि आप कहाँ से आए हुए हैं और कितने जानवर आपने खरीदे हैं? सर, हम लाहौर से आए हैं, 12 बकरे हमने खरीदे हैं और माशाल्लाह अच्छे रेट पे ज़बरदस्त। अगर लाहौर में हम लेते तो बहुत महंगे मिलते हैं, मगर यहाँ हमने आके बहुत अच्छे मुनासिब रेट। कौन सी नस्ल के बकरे, कौन सी ऐसी खास नस्ल है राजनपुर की जो आप यहाँ पर लेने के लिए आए? तो सफेद कहते हैं, नुकरे, चिट्टे बकरे। हाँ जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर नुकरे और वखरे बकरे राजनपुर की जो मंडी है ये मशहूर है और यहाँ की पहचान है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए, ये देखिए कितने दराज कद हैं इनके और इंतहाई खूबसूरत गुलाबी आंखें हैं इनकी, और इन्हीं गुलाबी आंखों की वजह से ही ये अपनी शोहरत रखते हैं और पूरे पाकिस्तान से, दूर दराज से, न सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि कराची तक से लोग जो है इन बकरों को खरीदने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। और ये बकरे जो है अपनी मुनफरिद, अपनी हैसियत की वजह से, मुनफरिद शक्ल की वजह से भी काफ़ी मशहूर है
और मवेशी मंडियां जो है इस वक्त यहाँ पर काफी रौनक है। इसके मंडी राजनपुरी बकरों से सज गई है। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद, आपने अपडेट किया। इस हवाले से रुक करते हैं डीजे खान का। डीजे खान की मवेशी मंडी तौनसा रोड बाईपास पर सज गई है, वहां से अपडेट करेंगे जिशान सफदर। जिशान बताएगा। कुर्बान की आमद है और इस हवाले से डेरा गाजी खान में स्पेशल बकरा मंडी सज चुकी है। इस वक्त कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से तौसा बाईपास पे ये मंडी सजाएगी और इस मंडी की खास बात यह है कि यहाँ पे प्योर आला नस्ल के राजनपुरी बकरे इस मंडी की रौनक बने हुए हैं। इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। इस वक्त हम एक पंडाल में मौजूद हैं और इस पंडाल में खूबसूरत कदावर बकरे यहाँ पे मौजूद हैं, राजनपुरी बकरे जो कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इस वक्त उनकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो है जारी है। हमारे साथ इस बकरे के मालिक मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या मंडी चल रही है, किस तरह से रेट्स वगैरह हैं, किस तरह से लोगों की आमद का सिलसिला है। आप मुझे बताएं, आपने कितने जानवर यहाँ पे आप लेके आए हैं इस तरह के बकरे? 10-12 बकरे। अच्छा, तो कितने बिक चुके हैं आपके? मेरे को 7 बकरे बिक चुके हैं, 3 बकरे बिक। अच्छा, तो किस तरह बकरा, ये बकरा आपका बिक चुका है? ये बिक चुका है। कितने का दिया है ये? पूरा लाख का। 1 लाख का बेचा है। ये 1 लाख का एक बकरा आपने बेचा है। अच्छा, इसकी उम्र कितनी है? 2 साल। और इसको खिलाते पिलाते क्या थे? माशाल्लाह इतना खूबसूरत बकरा है। गंदम, तूड़ी, चौकर खिलाता है, जंतर खिलाता है, दूध पिलाता है, सब कुछ खाता है। तो कितने साल की मेहनत है? कितना इस पे मेहनत करते हैं? कितना दिन इसको पालते हैं? ये 1-2 साल पालते हैं। जी बिल्कुल, 1-1.5 साल में ये बकरा एक तैयार हो जाता है और इसके बाद जो है इनको मंडी में लाया जाता है और मंडी में खूबसूरत दामों के साथ जो है इनका सौदा होता है। इनकी जो व्यापारी हैं यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे आए हुए हैं। इस वक्त खूबसूरत बकरों की जो है डिमांड है। ये खूबसूरत सफ़ेद बड़े बकरे राजनपुरी बकरे इनको कहा जाता है और ये राजनपुरी बकरे पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए हैं, व्यापारी आए हुए हैं जो कि बकरों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। इस वक्त व्यापारी भी खुश हैं क्योंकि ईद उल अज़हा का मौका है। हर बंदा जो यहाँ पे मौजूद यहाँ पे एंटर होता है इस मंडी में। गाजी खान में मवेशी मंडियां सज गई हैं, राजनपुरी बकरों की डिमांड है। जिशान सफदर आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करेंगे मियावाली से, जहां बरसाती नाला बरोड से तहसील ईसाखेल की यूसी तरक के 4 मौजाजात ज़ेरियाब आ गए। जंतीवाला, समदवाला, बलोची खेल और छीनापुड़ा में खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मौजा जंतीवाला में बरसाती नाले का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। मकीनों का कहना है कि कई बार वादे कर चुके हैं लेकिन ताहाल अमली इकदामात नहीं किए गए। पानी खुश्क होने के बाद कई रोज तक रोड पर कीचड़ मौजूद रहेगा जिससे हादसात रोनुमा होंगे। मकीनों का हुकूमत से फौरी तौर पर बंद बांधने का मुतालबा सामने आया है। मियावाली में बरसाती नाला बड़ूट से तहसील ईसाखेल की यूसी तरक के 4 मौजाजात ज़ेरियाब आ गए। जंतीवाला, समंदरवाला, बलोची खेल और छीनापुड़ा में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महकमा इनहार मुजफ्फरगढ़ का नहरी पानी चोरी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने का फैसला। टीमें तश्कील दे दी गई। एक्सीएन का कहना है कि अगर कोई सरकारी एहलकार भी पानी चोरी में मुलविस हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आमिर डोगर। मुजफ्फरगढ़ में सरकारी पानी चोरी करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का जो फैसला किया गया, इस सिलसिले में महकमा अनहार के जो एक्सीएन है उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुजफ्फरगढ़ ज़िला भर में नहरी पानी की शिकायत जो वो बड़े पैमाने पर जो सामने आ रही हैं, जिसके बाद छोटे काश्तकारों की शिकायत पर उसके अलावा दीगर वजूहात को बिना पर मद्देनजर रखते हुए टास्क फोर्स टीमें जो तश्कील दे दी गई और इस सिलसिले में एक्सीएन अनहार की जानिब से ये कहा गया है कि सूबाई वज़ीर आबपाशी की हिदायत पर ज़िला भर में अब पानी चोरी करने वालों के खिलाफ जो क्रैकडाउन जो वो शुरू किया जा रहा है। इस सिलसिले में शहरियों से भी ये अपील है कि वो सरकारी पानी चोरी करने वालों की निशानदेही करें, उनके खिलाफ जो FIR भी दर्ज की जाएगी और हवालात की सैर भी जो वो करवाई जाएगी। इस सिलसिले में टास्क फोर्स टीमें जो आज बाकायदा तौर पर मुजफ्फरगढ़ में तश्कील दे दी गई हैं, जो कि मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िला भर में जो वो कल से अपनी कार्रवाइयाँ जो इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो वो शुरू कर देंगे। उनकी जानिब से मजीद सरकारी पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आमिर डोगर आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, ज़िला बैतुलमाल कमेटी के पास फंड्स की कमी का मामला। चेयरमैन ज़िला बैतुलमाल कमेटी मलिक एजाज की जानिब से कमेटी के तमाम मेंबरान की मीटिंग आइंदा 3 रोज में रखने का ऐलान कर दिया गया। अपडेट करेंगी सुहेरा तारे।
ضلعی بیت المال کمیٹی کی جانب سے مستحق اور نادار افراد کی مالی امداد جو ہے وہ پہلے مرحلے میں تو کر دی گئی، لیکن اب دوسرے مرحلے کے تحت مالی امداد کا سلسلہ جو ہے وہ کب شروع کیا جائے گا اور ضلعی بیت المال کمیٹی کے پاس اس وقت کتنے فنڈز جو ہیں وہ موجود ہیں، اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلعی بیت المال کمیٹی کے چیئرمین ہیں ملک اعجاز صاحب۔ سر بتائیے گا کتنے فنڈز موجود ہیں اور پہلا مرحلہ گزرے ہوئے 3 مہینے ہو چکے ہیں، تو اب دوبارہ کب سے یہ سلسلہ شروع ہوگا؟ جی ہاں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تقریباً 3 دن بعد سیٹرڈے کو ہم میٹنگ کال کر رہے ہیں، لیکن پرابلم یہ آ رہے ہیں کہ جس مد میں ہمارے پاس فنڈ پڑے ہیں وہ ہم ابھی تک استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم نے بارہا ہائی کمان کو، لاہور والوں کو لکھے ہے کہ کائنڈلی آپ این جی اوز کی مد میں جو پڑے ہیں، جو پروفٹ کی مد میں پڑے ہیں، وہ پیمنٹ ہمیں تقسیم کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن ابھی تک سنوائی نہیں ہو رہی۔ آج ہمیں ایک میسج ملے ہے کہ آپ میٹنگ کال کریں اور ہم ود ان 3 days آپ کو یہ لیٹر بھیج دیں گے اور آپ لوگوں کو وہ پیسے دے سکتے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے چیئرمین صاحب سے جانا ہے کہ بیت المال کمیٹی کے پاس فنڈز تو موجود ہیں لیکن وہ پروفٹ فنڈز اور این جی اوز کے مدمے فنڈز موجود ہیں۔ مستحقین کے لیے فنڈز تقسیم کرنے کی اجازت دی جائے۔ بہت شکریہ سہیرہ طارق، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے ملتان ڈاکٹر ملک عابد محمود اور چیئرمین اعجاز حسین جنجوعہ کا گرین بیلٹس کا دورہ۔ گرین بیلٹس کی تزئین و آرائش اور صفائی کے لیے احکامات جاری کیے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں علی ریاض۔ جی علی۔ ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے ڈاکٹر عابد محمود، چیئرمین پی ایچ اے اعجاز جنجوعہ کے ساتھ جو ہے مختلف جو ملتان شہر گرین بیلٹس ہیں ان کا دورہ کرنے نکلے ہیں۔ گرین بیلٹس کی کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے جو تمام تر چیزوں کو جائزہ لیا گیا ہے اور اس بات کو بھی میک شور کیا گیا ہے کہ چونکہ موسم گرما ہے تو اس حوالے سے گرین بیلٹس میں جو ہماری گھاس لگی ہوئی ہے، گھاس کے ساتھ دیگر پودے لگائے گئے ہیں، مالیوں کی جانب سے ان کے لیے کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھوں، ان سے جانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری گرین بیلٹس بنی ہوئی ہیں ان میں کوئی کسی خاص ڈیزائن یا کسی پیٹرن سے نہیں بنی ہوئی، تو ٹیکنیکلی پہلی تو یہ بات ان میں موجود ہے۔ بٹ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جتنا بھی ایک پیٹرن چل رہا ہے لینئر پلانٹیشن کا یا جو رننگ ایک امپیکٹ دینا ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک فارمیشن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ یہاں جہاں بھی چیزیں ہمیں فائکسز ہیں، آگے کوئی کونو کارپس لگی ہوئی ہے، کوئی اور ہبسکس لگی، تو ان کو ایک فارمیشن میں، ایک ٹاپیاری کی صورت میں، ایک خاص ہائٹ پہ، ایک خاص شیپ میں لے کے چلیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چیئرمین پی ایچ اے اعجاز حسین جنجوعہ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کیا کہنا چاہیے گرین بیلٹس کے حوالے سے، کیا اقدامات ہونے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے جتنی تفصیل سے بتایا میرے پاس تو اتنی ٹیکنیکلٹی گفتگو بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو کنسیپٹ ہے گرین پاکستان کا، اور اس میں جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں گرین بیلٹس پارکوں میں اور بڑی سائز کے درخت لگا رہے ہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب کا، ہمارے ڈی جی صاحب کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے کہ یہ اس کو ٹیکنیکل طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور یہی ہمیں خوشی ہے کہ انشاءاللہ اگر کچھ عرصہ یہ جس طرح کہ آپ کے پی ایچ اے کی روٹین ہے، ہر کچھ عرصے بعد ڈی جی صاحب کو چینج کر دیتے ہیں، اگر یہ کچھ عرصہ ملتان میں لگے رہے تو ملتان کی شکل چینج کر جائیں گے۔ درخت لگانے چاہیے، اس کی حفاظت بھی کرنے چاہیے۔ چیئرمین پی ایچ اے کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید پودوں گرین بیلٹس کی تزئین و آرائش کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ علی ریاض، آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ سرکاری نرخ نامے سے زائد پر چیزیں فروخت کرنے والے دکانداروں کو 17,000 روپے کا جرمانہ عائد کر دیا گیا، جبکہ 2 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ تمام کارروائی پیرا غائب روڈ، 40 فٹی روڈ، گلگشت اور خونی برج کے اطراف میں کی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ سرکاری نرخ نامے سے زائد پر چیزیں فروخت کرنے والے دکانداروں کو 17,000 روپے کا جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں ڈیرہ غازی خان گل اقبال کالونی کی گزشتہ رات سے بجلی غائب ہے، ٹرانسفارمر جلنے سے تاحال بجلی بحال نہیں ہو سکی۔ ڈی جے خان سے اپڈیٹ کریں گے ذیشان سفتر۔ کہ میں گلشن اقبال ٹاؤن میں موجود ہوں اور یہاں پہ کل رات سے بجلی بند ہو چکی ہے، جس کے بعد بجلی کو بحال نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ جتنے بھی گھر ہیں وہ بجلی کے بغیر کل رات سے گزار رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں یا گھروں میں خواتین ہیں وہ کافی مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں۔ اس وقت یہاں پہ اہل علاقہ موجود ہیں جو کہ بجلی بند ہونے پر احتجاج کر رہے ہیں، سراپا احتجاج ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے وابڈا کو درخواست بھی کی ہے، فون بھی کیا، کمپلینٹ بھی کیا، لیکن ابھی تک کوئی جو ہے اس کا نتیجہ نہیں نکلا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ علاقے کے لوگ موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کتنی دیر سے بجلی نہیں ہے اور کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ بھائی کل شام سے نا بجلی نہیں ہے، 5 بجے سے ابھی تک بجلی نہیں ہے، پورے محلے والے پریشان ہیں۔
किसी की भी बिजली नहीं है, किसी का पानी, घर का पानी नहीं है, मच्छर हैं यहाँ पर, बहुत बंदे परेशान हो रहे हैं। मेहरबानी करें, जल्द से जल्द बहाल करा दें बिजली, आपकी मेहरबानी होगी, अल्लाह आपको खुश रखे। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं अहले इलाका काफ़ी परेशानी में मुब्तला है। इनका कहना है कि गर्मी की शिद्दत एक तो बहुत ज़्यादा है, दूसरा बिजली ना होने की वजह से मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। इनका कहना है कि जल्द से जल्द वापडा हुकाम यहाँ पे बिजली को बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया ज़िशान, आपने अपडेट किया। इस हवाले से कोरोना कोटद्दू वार्ड नंबर 14A का रिहायशी 20 साला अली रजा वल्द मोहम्मद अशरफ 2 दिन से लापता है। दुकान बंद करके वापस घर नहीं पहुँच पाया। कोटद्दू से अपडेट करेंगे तैमूर अतर। इस वक्त हम मौजूद हैं कोटद्दू के नवाई इलाके सिंधी बस्ती में। 2 रोज़ कबल अली रजा नामी 20 साला जो लड़का है वो लापता हो गया है। रात के वक्त सुपर स्टोर की दुकान है, बंद करने के बाद घर नहीं पहुंचा। जो उसका मोबाइल है वो भी बंद हो चुका है। इस वक्त हम उनके घर मौजूद हैं, उनके जो वालदैन हैं और अहले इलाका यहाँ पर जमा। इनकी जानब से पुलिस को दरख्वास्त भी दे दी गई है, लेकिन अभी तक अली रजा का पता नहीं चल सका। उसके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा, 2 रोज़ से लापता है, किस तरह लापता हुआ है? नंबर बंद है, किसी रिश्तेदारों के घर भी पता किया है, पुलिस को एप्लीकेशन दी है, क्या कहती है पुलिस? पुलिस वालों को दी एप्लीकेशन, वो कहते हैं जी क्या नाम इसका हम पता करेंगे। 2 दिन से SHO नहीं आया वहाँ पर, हम परेशान हैं। हमारा लड़का परसों से गायब है, यूँ समझो सोमवार को 10:30 बजे से अब तक घर नहीं पहुँचा। वो कुरान मिचा हुआ हमारे घर में। रिश्तेदारों से पता जी, रिश्तेदारों से पता किया हमने, सारी जगह पता किया, बिल्कुल नहीं मिल रहा। पहले कहीं जाता था? नहीं, कहीं नहीं जाता था, बिल्कुल गलत सोसाइटी नहीं थी उसकी बिल्कुल भी, और ना कोई यारी दोस्ती थी, कहीं नहीं बैठता था। वो सीधा 10:30 बजे दुकान बंद करके 11 बजे अपने घर आ जाता था। अहले इलाका भी हमारे साथ मौजूद है। आप बताइएगा किस तरह का लड़का था? 2 रोज से लापता है, नंबर बंद है, रिश्तेदारों को इलाके में उसका पता किया है, क्या पता लग सका है? भैया इंतहाई शरीफ लड़का है और बिल्कुल अपने दुकान से सीधा घर, और पूरा मोहल्ला इस बात की गवाही देता है कि ये इंतहाई शरीफ बच्चा है। लेकिन टेंशन ये है कि वो घर से दुकान बंद करके जब निकला है तो घर वापस नहीं आया। तो हमने पूरे जगह पे उसका पता किया है, तमाम रिश्तेदारों में, तमाम जितने भी रिलेटिव्स थे, दोस्त यार जितने भी थे, सब जगह पे पता किया है। और इसके बाद बेहिसी की बात यह है कि अभी तक कोई इंतज़ामिया ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया। SHO साहब 2 दिन से मिलने से कासिर हैं। तफ्तीशी साहब के पास जाते हैं, पूरे अहले मोहल्ला भी इकट्ठा होकर गए थे, लेकिन अभी तक भी कोई रिस्पांस हमें नहीं मिला। जी बिल्कुल, बच्चे को बाजियाब नहीं करवाया जा सका अभी तक। बहुत शुक्रिया तैमूर अतर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से मुल्तान में खवातीन को तशद्दुद से बचाने के लिए कानून और इदारे मौजूद, लेकिन अवाम को आगाही नहीं। खवातीन पर तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ के मरकज में 3 साल में सिर्फ 4000 केसेस ही दायर हुए हैं। घरों में या काम पर खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ पंजाब प्रोटेक्शन एक्ट 2016 मौजूद है। खवातीन को तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ मरकज में मुफ्त कंप्लेन, मेडिकल की सहूलियात, रिहाइश और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं माहिर इमरान। जी बिल्कुल, घरों में काम करने वाली जो खवातीन हैं और घरों में रहने वाली जो खवातीन हैं, अगर उन पर किसी भी तरह का कोई तशद्दुद होता है, घर वाले करते हैं या उनका बॉस, उनका मालिक जो है वो करता है, बहन भाई या कोई भी रिश्तेदार करता है, तो उसके खिलाफ जो है कानून मौजूद है और वो इदारे भी मौजूद हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं कि हमने किस इदारे में जो है वो जाना है, इस हवाले से कानून क्या है और किस तरह वो रिलीफ खवातीन ले सकती हैं। हमारे साथ माहिर कानून यहाँ शहरियार महबूब साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे। जी, इस कानून का नाम है द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016। इस कानून के तहत पंजाब के तमाम अजला में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर कायम हुए हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है जनूबी पंजाब में वो मुल्तान है, जो बड़ा खुशउस्लूबी से चल रहा है। ये कानून बनाने का मकसद ये था, जो ख़वातीन घर में हैं, वो खा माँ है, बेटी है, बहन है, भतीजी है, पोती है, और उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उसको अब्यूज़ किया जा रहा है, उसको खाना देने से इनकार किया जा रहा है, और वो औरत ये समझती है कि जी मैं अगर घर से जाऊंगी तो मैं जाऊंगी कहाँ, मेरे पास कोई सर छुपाने की जगह नहीं है। ऐसी ख़वातीन के लिए ये कानून बनाया गया है कि वो ऐसी ये शिकायत उस सेंटर में करेंगी। उन्हें रिवायती तौर पे कचहरी या थाने आने की ज़रूरत नहीं है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर में वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं जो कि उनकी मुद्दइया बनेंगी। इस कानून की सबसे अहम बात यह है कि आदमी को हुक्म दिलवाया जा सकता है अदालत के ज़रिए कि आप इस औरत को घर से बेघर नहीं करेंगे, इसको अखराजात देंगे। अगर ये औरत कहीं जॉब करती है, इसकी जॉब की जगह पे नहीं जाएंगे।
اور اگر ایسے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی وہ شخص کرتا ہے تو اس کو 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک جرمانہ اور 1 سال تک قید، اور دوبارہ اگر وہ اس جرم کرتا ہے جو عدالت کی کوئی بات نہیں مانتا تو یہ سزا ڈبل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی تشدد پنجاب پروٹیکشن ایکٹ 2016 موجود ہے۔ ماہر عمران آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں بہاولپور کے علاقے بلوچ کالونی میں لاکھوں روپے چوری کی واردات۔ چور رات کی تاریکی میں گھر سے 7 تولے زیور، 2 لاکھ نقدی اور مقدس زیورات چوری کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ بہاولپور کے علاقے بلوچ کالونی میں لاکھوں روپے چوری کی واردات ہوئی۔ چور رات کی تاریکی میں گھر سے 7 تولے زیور اور 2 لاکھ روپے نقدی اور مقدس زیورات چوری کر کے فرار ہو گئے ہیں۔ شجاع آباد میں اسسٹنٹ کمشنر کے ناروا سلوک کے خلاف انجمن تاجران کا شٹر ڈاؤن احتجاج جاری۔ صدر انجمن تاجران حاجی اختر قریشی نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ SOPs کا بہانہ بنا کر انجمن تاجران کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، جس کے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے تبادلہ تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرے ہیں۔ شجاع آباد میں اسسٹنٹ کمشنر نے ناروا سلوک کے خلاف انجمن تاجران کا شٹر ڈاؤن احتجاج جاری ہے۔ صدر انجمن تاجران حاجی اختر قریشی نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ SOPs کا بہانہ بنا کر انجمن تاجران کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے انجمن تاجران کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کا کیا کہنا تھا، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ جو ہے احتجاج کر رہی ہے، ان کے احتجاج کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ان لوگوں کو پچھلے 20-25 دن سے ان لوگوں کو بار بار جو ہے ایک گزارش کی گئی کہ آپ خود بھی ماسک پہنیں، اپنے جو ان لوگوں کی دکان میں لوگ تشریف لاتے ہیں، ان کے گاہک ہیں، ان لوگوں کو بھی اس طرف ان کو بھی آگاہی دیں، کوشش کریں، لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں جو جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں، نہ خود ماسک پہنتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ ماسک چھوڑیں جی، فائن کروا لیں، آپ یہ کریں وہ کریں، اس طرح کی غیر ضروری باتیں میں الجھے ہوئے ہیں، الجھ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی کے ساتھ ذاتی نہیں ہے، ہمارا کام صرف حکومتی اقدامات پر عمل درآمد کرانا ہے اور وہ ہم ہر صورت میں کروائیں گے۔ غلط کو ہمیشہ غلط ہی کہیں گے اور غلط ہمیشہ غلط ہی رہتا ہے، غلط کبھی بھی سچ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ان لوگوں کا ایک غلط موقف ہے جس پہ ان کا جو احتجاج ہے یہ بلا جواز ہے۔ تاجر برادری کے مختلف لوگ میرے دفتر میں تشریف لاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے مسائل پہ بھی بات ہوتی ہے، سیر اصل گفتگو ہوتی ہے، ان لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ بازار کے اندر پیدل آنے جانے والے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ کچھ تبادلوں کی بات کریں اور آپ کو بتائیں میاوالی میں جیل سپرنٹینڈنٹ امتیاز احمد بھالی کا تبادلہ کر دیا گیا۔ امتیاز احمد بھالی کی جگہ میاوالی جیل سپرنٹینڈنٹ اشتیاق احمد گل کو تعینات کیا گیا۔ امتیاز بھالی جیل سپرنٹینڈنٹ ساہیوال تعینات کر دیے گئے۔ امتیاز احمد بھالی 5 ماہ جیل سپرنٹینڈنٹ میاوالی رہے ہیں۔ میاوالی میں جیل سپرنٹینڈنٹ امتیاز احمد بھالی کا تبادلہ کر دیا گیا۔ امتیاز احمد بھالی کی جگہ میاوالی جیل سپرنٹینڈنٹ اشتیاق احمد گل کو تعینات کیا گیا ہے۔ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتے ہی سرکاری اسکولوں میں چھتوں، واٹر ٹینکی، عمارتوں اور دیگر جگہوں پر پانی جمع ہونے سے ڈینگی لاروا کی افزائش کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ رحیمہ خان سے اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے عامر بھٹی۔ بالکل، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اینٹی ڈینگی کمپین میں اس وقت متحرک ہو چکا ہے اور ڈپٹی ڈائریکٹر مانیٹرنگ نے سی ایجوکیشن رانا محمد اظہر خان کو SOPs جو اینٹی ڈینگی کے بنائے گئے ہیں ان کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس میں واضح طور پہ SOPs کی جو ہدایات ہیں وہ جاری کر دی گئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ مونسون کا موسم ہے اور بارشوں کا ایک سلسلہ بھی جاری ہے۔ تیز بارشوں کے باعث جو سرکاری اسکول کی عمارتیں ہیں، جو رومز ہیں، ان کے اوپر، ان کی چھتوں کے اوپر جو ہے پانی جو ہے کھڑا ہونا شروع ہو گیا، اور یہ پانی نہ صرف چھتوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے بلکہ ڈینگی لاروے کی افزائش کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں کے تمام جو متعلقہ افسران ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول ہیڈز ہیں ان کو چاہیے کہ جہاں بھی پانی دکھائے جس میں واٹر ٹینکی، جس میں واش رومز اور اس کے ساتھ ساتھ جو گراسی پلاٹس ہیں، اگر وہاں پہ پانی دکھایا جائے تو فوری طور پہ اس پانی کو
साफ कर लिया जाए। इसके साथ साथ छतों से अगर कहीं पानी भी टपक रहा है तो इसकी पानी की लीकेज को भी फौरी तौर पे जो है बंद कर दिया जाए। यही जो एसओपीज हैं वो प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी हैं कि प्राइवेट स्कूल भी इन एसओपीज पे जो मुकम्मल तौर पे अमल करें ताकि कोरोना वायरस की जो हिदायत हैं और जो एसओपीज हैं हिदायत पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।